them. So we have already covered in part one like eight questions. I'm gonna make the bunch of eight questions in all the sessions, so we have enough time to explain in detail. Okay. अगर आप लोग अप्लाई जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग इंटरव्यू में कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हो, एंड इफ यू वांट मी टू आंसर इन डिटेल फॉर दोज क्वेश्चंस, you can definitely post your questions which you are struggling in the interview. I will try to help you out. So let's start about today's list of questions. So these are the list of questions that we're gonna discuss today, right? The common test case for the web-based applications, mobile-based application. What is defect triage process? What is integration testing, functional and non-functional testing? Different type of documents we have in testing, like what is bug, defects, error, fault, and failure. The definition of those things, and then defect life cycle. Okay, so before going to these interview questions, right, I will just suggest that you just clear your concept about the manual testing first. Okay, because once you have a concept clear on manual testing, then and then this interview question will make more sense to you. So for that one, I have already created the crash course, right? I have already uploaded on my SLT learning channel. If you refer these 11 videos, right, this is manual testing crash course video, right? This is one of the training videos that I have uploaded over here because I was giving the training to the my candidate, and I thought it's good to share with you guys, so you can learn it from over here. Like all the major, I will just say, topic has been covered about the manual testing. Okay, so let's we start without wasting our time on about the first questions of today's session, like common test cases for web based application, right? So when we thought about the web-based application, right, then always whenever somebody asks you to give the test case on X object or Y object, right, just have these things in your mind. So web-based application must be related with the browser, right? So when it is related with the browser, we open a URL or something like that way. So have few things in your mind, like first I will validate the header section, right? So header में क्या क्या आता है, links, logo, menus and all those things कि भी properly navigate कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. Then I will validate the footer sections, right? Then login and registration. Login में क्या आएगा कि भाई वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड से हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इनवैलिड में वो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है. देन आएगा रजिस्ट्रेशन, कि भाई रजिस्ट्रेशन का जो हम लोग प्रोसेस है, अगर हमको किसी नए यूजर को साइन अप करना है या रजिस्टर करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें अगर इनवैलिड डेटा डालो तो क्या मैसेज आता है, वैलिड डेटा डालो तो अगर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कैसे मैसेज आता है, उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाता है, मैसेज जाता है. ये सारी चीज़ें यू हैव टू मेक श्योर. ओके, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं फॉरगॉट एंड रिमेंबर मी और पासवर्ड रिलेटेड थिंग्स, राइट, कि भी फॉरगॉट पासवर्ड कैसे काम करता है. अगर मैं रिमेंबर पासवर्ड चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो रिमेंबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर कोई यूज़र रीसेट पासवर्ड करना चाहता है तो कैसे कर पा रहा है, और उसको ऑटोमेटिक लिंक जाती है कि नहीं जाती है रीसेट पासवर्ड की. तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे. ये जो कुछ टॉपिक्स है आपको कॉमन मिलेंगे फॉर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में. तो ऑलवेज मेक श्योर कि एक बार आपने ये सारी चीज़ें दिमाग में डाल दी ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर सच क्वेश्चंस कि भाई कैन यू गिव मी द टेस्ट केस ऑफ द लॉगिन पेज, राइट? तो लॉगिन पेज में क्या होगा कि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड होगा, तो उसके हिसाब से हमको टेस्ट केस लिखना है. ओके, फिर आ जाएंगे हम लोग बटन्स और लिंक चेक करेंगे, राइट? अगर हमारे वेब पेज में कहीं पे भी बटन्स है तो उस पर क्लिक करते हैं, या लिंक्स है तो उस पर क्लिक करते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं, या बटन उसके हिसाब से, जैसे मान लो सबमिट बटन है तो सबमिट बटन डेटा सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे. फिर हो गया रेडियो बटन चेक बॉक्स, राइट? तो रेडियो बटन में एज वी नो, राइट, समटाइम्स क्या होता है कि भाई रेडियो बटन में हम लोग मल्टीपल, कभी कभी वो लोग जो डिजाइनर होते हैं उनसे कुछ गलती होती है, तो इन रेडियो बटन द कंसेप्ट के भी हम एट अ टाइम वन ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाते हैं. तो ये सब सारी चीज़ें हमको मेक श्योर करनी है कि चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. रेडियो बटन में मल्टीपल ऑप्शन नहीं चेक होने चाहिए, तो वो हमको मेक श्योर करना है. फिर आ जाता है कोई भी वेबसाइट में अपलोड और डाउनलोड की फैसिलिटी है, राइट? जैसे जॉब पोर्टल है तो वहाँ पे हम लोग अपना रिज्यूम अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. दूसरा है कि भाई कौन से फॉर्मेट की फाइल्स अपलोड कर पा रहे हैं, राइट? अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल कंप्रेस होती है कि वो सेम फॉर्मेट में या सेम रिजोल्यूशन में डाउनलोड होती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेक श्योर करेंगे ऑन एनी एप्लीकेशन, राइट? मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है. नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव अ वेब बेस्ड वेरिएंट ऑफ देयर एप्लीकेशन, इसलिए मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किया है.
फिर हम लोग सर्च फंक्शनैलिटी को वैलिडेट कर सकते हैं कि भी एप्लीकेशन में कहीं सर्च फंक्शनैलिटी है, तो पार्शियल सर्च हो रहा है कि नहीं, कि फुल कीवर्ड सर्च हो रहा है कि नहीं। तो हम कीवर्ड के बेस पे हम लोग सर्च करेंगे। अगर मान लो कि जो मैंने सर्च किया है, अगर उसके बारे में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यूज़र को कैसे प्रॉम्प्ट करेगा कि रिजल्ट नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दैट वे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू को हम लोग वैलिडेट करेंगे कि ड्रॉप डाउन मेनू में हम लोग देखेंगे कि भी वहाँ पे जो जितने ऑप्शन होने चाहिए वो है कि नहीं है, राइट। जैसे मान लो कि भी कोई ड्रॉप डाउन है, उसमें उन लोग ने डिसाइड किया था कि देयर विल बी दी 8 ऑप्शन इन दिस ड्रॉप डाउन। तो वो हमको मेक श्योर करना है कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं है। फिर आ जाता है टूल टिप्स, राइट। कोई भी ऑप्शन के या कोई भी आई विल जस्ट से इस द फंक्शन में टूल टिप्स ज़रूरी हमको चेक करना होता है। उसमें मेन तो कि टूल टिप्स का डिस्क्रिप्शन एज़ पर द रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। दूसरा कि स्पेलिंग मिस्टेक हमको देखनी है, राइट, कि भाई कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कि वो सब चीज़ें देखनी है। फिर आता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, राइट। उसका कलर कॉम्बिनेशन और अलाइनमेंट एज़ पर द डिज़ाइन है कि नहीं है। कहीं पे भी कलर ऐसा तो नहीं कि जो डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है, जैसे डिज़ाइनर ने क्रिएट किया था, उसके हिसाब से पूरा उसका वेरिएंट हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं। फिर हो गया मेनूज़ एंड नेविगेशंस, राइट। तो फिर डिफरेंट मेनूज़ और नेविगेशन जब हम उस पे क्लिक करते हैं, सब मेनू पे क्लिक करते हैं, या कहीं पे भी साइट मैप जो होता है एट द बॉटम के साइट मैप के हिसाब से वो नेविगेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हम लोग वो हिसाब से टेस्ट करेंगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो हम लोग कंपेटेबिलिटी भी टेस्ट करेंगे कि भाई डिफरेंट ब्राउजर में वो कैसे वर्क कर रही है। जैसे फायरफॉक्स में चल रहा है, गूगल क्रोम में चल रहा है, आई में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स में वो कैसे उसका मेनूज दिख रहा है, कैसे उसके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मेक श्योर करेंगे। CRUD ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएट ऑब्जेक्ट, रिट्राइव ऑब्जेक्ट, अपडेट दी ऑब्जेक्ट एंड डिलीट दी ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग मोस्टली सब जगह पे चेक करते हैं। कि मान लो कि भाई, तो जैसे मान लो कि फेसबुक है, राइट। तो फेसबुक में प्रोफाइल क्रिएट होती है, प्रोफाइल अपडेट होती है, प्रोफाइल को हम लोग कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और प्रोफाइल डिलीट कैसे होती है। तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विल हैव दिस CRUD ऑपरेशन। सो ऑलवेज मेक श्योर क्रिएट, एडिट, अपडेट और डिलीट और रिट्राइव यानी सिलेक्ट, ये चार चीज़ आप बिल्कुल चेक करो, सारे जो जो भी ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हो। फिर आ गया यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, राइट। ये मीन्स मेनली द यूआई टेस्टिंग, कि भाई उसका जो लुक एंड फील, जो जीयूआई में हम लोग मेनली देखते हैं कि कलर्स एंड अलाइनमेंट सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका लुक एंड फील कैसा है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एनी सजेशंस दैट विल कम, दैट विल फॉल अंडर दिस यूआई टेस्टिंग। फिर आता है परफॉर्मेंस चेक, राइट। तो लिटिल बिट अबाउट लाइक भी, मैंने जब ये पेज को ट्राई टू लोड दिस होम पेज, एंड मैंने जब ये मेनू पे क्लिक किया, देन इट टुक लाइक मच मोर टाइम टू लोड द स्क्रीन, राइट। तो वो सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करके उसमें टेस्टिंग के हमने हमारे टेस्ट केस में डाल सकते हैं कि भी उसको 5 सेकंड लेना चाहिए था या 7 सेकंड लेना चाहिए था, लेकिन उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, राइट, एट अ फ्रेशर लेवल। और कभी भी आपको कोई इंटरव्यू में आपको पूछता है कि भाई कैन यू जस्ट गिव मी फ्यू ऑफ द कॉमन टेस्ट केसेस फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आप लोग ये कीवर्ड्स ध्यान में रखोगे, अगर आपके दिमाग में रखोगे, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। आपको ये सारे नहीं बोलने हैं, अगर आप इसमें से 5-6 भी अच्छे से बोल दिया उसको, तो इट विल बी क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो सिमिलर लाइक अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ऐसे ही हम लोग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में जाते हैं। तो जैसे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होती है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग उसको बेसिक से चेक करते हैं। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन है, तो उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इंस्टॉलेशन हो गया, डाउनलोड हो गया, राइट। इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसकी ऐप प्रॉम्प्ट होती है कि नहीं होती है, राइट। फिर इंस्टॉल होने के बाद वो उसका स्पेसिफिक गैलरी में फ़ोल्डर क्रिएट करता है कि नहीं करता है, राइट? तो वो सब चीज़ें हमको चेक करनी है। अनइंस्टॉल करके चेक करना है कि भई जब मैंने अनइंस्टॉल किया तो व्हाटएवर द फ़ोल्डर दैट ऐप हैज़ क्रिएटेड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर मोबाइल। कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए। फिर आ गया डाउनलोड एंड अपडेट्स। अपडेट्स करके चेक करो कि भाई वर्ज़न 1 का 2 अपडेट जब होता है, तो हाउ स्मूथली इट इज़ गोइंग, राइट? ऐसा तो नहीं है कि अपडेट में स्टक हो रहा है, तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। बैटरी, राइट? कि भाई लो बैटरी में एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है। तो कुछ एप्लीकेशन होती है जो अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, लो होती है, तो उसका थोड़ा वो चेंजेस रहता है इन अ परफॉर्मेंस, तो वो आप चेक कर सकते हो। डिफरेंट मोबाइल्स हेडसेट लेके भी आप चेक कर सकते हो, लाइक। फिर हो गया मोबाइल एलिमेंट्स, राइट। तो जैसे मोबाइल्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि भी स्क्रॉल डाउन हो गया, उसका टच हो गया, उसका टैब हो गया। तो वो सारी चीज़ें आप लोग मेक श्योर कर सकते हो कि भी वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन में भी आता है अपना अपलोड एंड डाउनलोड, राइट। तो वहाँ पे फाइल अपलोड करते हैं तो कैसे वो एक्सेस परमिशन मांगता है, तो वो सारी चीज़ें हमको चेक करनी है कि परमिशन के लिए वो लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब व्हेन आई इंस्टॉल द मोबाइल एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम, राइट,
तो लोकल डेटा का परमिशन आपसे पूछेगा कि कैन आई एक्सेस योर फाइल्स फ्रॉम गैलरी। तो वो चेक चेक करना है। जब डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड वो एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में ही होता है या कहीं पे भी हो जाता है, तो वो चेक करना है। सर्च फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, फुल कीवर्ड सर्च, पार्शियल कीवर्ड सर्च के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट चालू थी, आप उसमें कुछ कर रहे थे और अगर अचानक स्विच ऑफ हो गई फ़ोन, राइट? तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? जब वो स्विच ऑन करेंगे तो वो जो डेटा आप लोग काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली सेव होता है या इट विल लॉस योर डेटा, तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग अ एप्लीकेशन, आपको कोई कॉल आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है, तो किस हिसाब से वो प्रॉम्प्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कैसे वर्क करेगी, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। फिर आ गया डिस्प्ले एलिमेंट्स, राइट? कि आपकी एप्लीकेशन में जो एलिमेंट्स आपके मोबाइल ऐप में दिख रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, यानी कि आप डिफरेंट हेडसेट से यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट। आई विल जस्ट से नॉर्मली हम लोग जब ब्राउज़र में भी कुछ चेक करते हैं, राइट? जैसे हम लोग ब्राउज़र में भी, जैसे ये मान लो कि भी ये कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ये मैं इंस्पेक्ट में जाके इसको मैं यहाँ पे मोबाइल व्यू में डाल दूँगा, तो यहाँ पे मुझे मोबाइल व्यू का भी दिखेगा, यहाँ से मैं डिफरेंट हेडसेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ से भी एक बार टेस्टिंग कर सकते हो, फिज़िकल हेडसेट से भी आप टेस्टिंग कर सकते हो और ये आपको यूज़फुल रहेगा कि भी आप कैसे आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। मैं मेनली फ़ॉलो करता हूँ गुरु 99 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कुछ अच्छी-अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये सारे टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो अच्छे से डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। तो जैसे ये रहा मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के सैंपल टेस्ट केसेस सिनेरियो और ये रहा उसके वेब बेस्ड एप्लीकेशन की चेकलिस्ट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप इसीलिए ध्यान में रखो कि व्हेन यू हैव दिस नॉलेज, राइट, आपके बोलने में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? आपको जब चीज़ें पता होती है, आप उसको अच्छे से बोल पाते हो। सो दिस इज़ द रीज़न आई वांट कि आप उसको अच्छे से समझो और उसके हिसाब से आप आंसर दो। फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क में या वाई-फाई में कैसे बिहेव करती है, राइट? कि उसकी स्पीड अगर मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपकी मोबाइल ऐप में क्या आ रहा है कि भी कुछ मैसेज आ रहा है कहने कि you have low network or low battery backup or something like that way। फिर आपकी एप्लीकेशन अगर चैट एप्लीकेशन है या वहाँ पे कुछ आप बैकअप एंड रिकवरी करना चाहते हो, तो आप कैसे करवा सकते हो? मुझे ये, जैसे मान लो कि मेरा नया मोबाइल आया, मुझे ये मोबाइल में से मेरे इसको अनइंस्टॉल करके मुझे नए मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं कैसे बैकअप और उसको नए मोबाइल में रिकवर कर सकता हूँ? अगर आपकी मोबाइल मल्टी प्लेटफ़ॉर्म है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाली है, जैसे एंड्रॉयड और आईओएस में, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि भई बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन और फंक्शनैलिटी आर सेम और नॉट। मेन चीज़ होती है मोबाइल एप्लीकेशन में स्क्रॉलिंग, राइट? स्क्रॉलिंग एंड टच। तो स्क्रॉलिंग और टच हमको मेनली चेक करना होता है कि भई अरे ये स्मूथ है कि नहीं है, राइट? एज़ पर द यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपका यूआई टेस्टिंग बहुत काम आता है जब व्हेन यू आर टेस्टिंग द मोबाइल एप्लीकेशंस, बिकॉज़ यहाँ पे जब यूज़र अपने फिंगर से उसको यूज़ करते हैं, तो देन दे वांट कि भाई स्क्रॉलिंग स्मूथ होना चाहिए, उसका टच और जब टैब पे क्लिक करें तो ईज़िली ओपन होना चाहिए। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप इसमें से मान लो आधे भी बोल रहे हो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में, इट इज़ मोर देन इनफ, राइट? तो इफ समबडी आस्क यू कैन यू गिव मी योर I will just say the experience in mobile application testing, just speak about these things, right? It will also create a good impression in front of you. सो ये हो गया अपना वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफेक्ट ट्रायज प्रोसेस, राइट? ये एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे मान लो कि भी आप डिफेक्ट जब रेज करते हो, वी ऑलरेडी नो, राइट, हाउ टू रेज अ डिफेक्ट। तो हम जब डिफेक्ट रेज करते हैं, हम लोग प्रायोरिटी और सिवियरिटी वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट में कैसा होता है कि यार टेस्टर जब डिफेक्ट रेज करते हैं या एक्सटर्नल कस्टमर से भी डिफेक्ट आती है, राइट, तो वो लोग वहाँ पे सब चीज़ों को लॉक कर देते हैं। और जब जैसे मान लो 200-300 डिफेक्ट हो गई है, राइट, तो उस सारी डिफेक्ट को हम लोग कैसे प्रायोरिटाइज करें, राइट, और सीवियरिटी कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करें, वो सब डिस्कस करने के लिए एक एक प्रोसेस होती है, डिफेक्ट ट्रायज प्रोसेस। यहाँ पे मेनली एक्सपीरियंस काम आता है, इसीलिए इस मीटिंग में मोस्टली सीनियर पर्सन रहते हैं, राइट? टेस्ट लीड हो गया, डेवलपमेंट लीड हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। और जैसे ये लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज दे आर द सीनियर, दे हैव द एक्सपीरियंस टू इवेल्युएट द प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी ऑफ द एनी डिफेक्ट। सो इसकी वजह से ये लोग एक मीटिंग रखते हैं, राइट? और जैसे इसमें डिफरेंट रोल होता है, जैसे टेस्ट लीडर क्या करता है कि भी वो इस मीटिंग को वही स्केड्यूल करता है, राइट? वो एक डिफेक्ट का रिपोर्ट बनाता है, डिफेक्ट रिपोर्ट, उसमें सारी डिफेक्ट होती है, उसकी प्रायोरिटी सीवियरिटी होती है, राइट? उसको सारी, और जब ये मीटिंग होती है उसकी जो भी नोट्स होती है, मोमेंट्स ऑफ मीटिंग, वो कैप्चर करता है। डेवलपमेंट लीड इसको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है, एज वी ऑल नो, राइट, कि भाई डिफेक्ट कितनी जल्दी सॉल्व होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी कौन डिसाइड करते हैं? डेवलपर डिसाइड करते हैं। तो डेवलपमेंट लीड यहाँ पे ये चीज़ ये चीज़ पे
आई विल जस्ट सेज के कंट्रीब्यूट करता है, राइट। वो डिस्कस करता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, और उसको हम लोग एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग हम इसको कितने टाइम में इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई रिस्क है तो वो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर और टेस्ट लीड से डिस्कस करता है। फिर वो इस हिसाब से वो डिफेक्ट को अलोकेट करना स्टार्ट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर मेनली इसको यहाँ पे मॉनिटरिंग रोल पे रहता है, बिकॉज ही वांट्स टू मेक श्योर कि जो स्प्रिंट हमारा नेक्स्ट आने वाला है उसमें कितने डिफेक्ट लेनी है, राइट, कोई डिफेक्ट इग्नोर करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होती है एज अ पार्ट ऑफ द स्प्रिंट प्लानिंग एज वेल, राइट। तो लिस्ट ऑफ डिफेक्ट, ये डिफेक्ट ट्रायल्स प्रोसेस भी नॉर्मली जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो हमारा मंथली होता है, राइट। और मंथली हम लोग क्या करते हैं कि 20 डिफेक्ट ले लेते हैं, 20 या 30 डिफेक्ट लेते हैं, और उसके बेस पे हम लोग उसको 2 स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं। So if somebody asks you what is defect triage process, so just says this is the process to restructureize the list of defect or re-evaluate the list of defect based on their priority and severity, so we can streamline the sprint planning. Okay, or in this particular, and as a threshold level, right? If this is, have you ever been in a defect a triage meeting? You just say no, I have not in a meeting, but we have referred the meeting notes, so we know like how they normally work. Okay, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इंटरव्यू में आ सकता है। The next question is what is integration testing, right? So, and what are the different types of integration testing we have? So we all know, right, integration testing is a part of the level of testing, like different levels होते हैं, right? एंड इसके बारे में डिटेल में मैंने मेरे वीडियोस में बताया हुआ है, क्रैश कोर्स की वीडियो में, कि जैसे मान लो यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, एंड यूएटी टेस्टिंग हो गया। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ पार्ट विच कम आफ्टर द यूनिट, सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द पार्ट विच कम आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग। तो सारे यूनिट टेस्ट हो गए हैं। नाउ अवर गोल इज टू चेक, अगर हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल्स साथ में स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये चीज़ें मेक श्योर करते हैं। तो इसके डिफरेंट टाइप्स है, लाइक बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड हाइब्रिड। तो बिग बैंग में क्या होता है कि भाई हम लोग सारे मॉड्यूल एक साथ टेस्ट करते हैं, हम लोग रैंडमली टेस्ट करते हैं यहाँ पे, राइट। हम ऐसा नहीं कि भाई ये दोनों मॉड्यूल को एक साथ टेस्ट करना है फिर उसके बाद ये नहीं, हम लोग ओवरऑल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं एज एंड टू एंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे सारे मॉड्यूल्स वी मर्ज टुगेदर एंड टेस्ट टुगेदर। ओके। टॉप डाउन में क्या होता है कि we'll go from the top, right? We check the first module, then we will take the second one, so we will check them together, right? उस हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, राइट। जहाँ पे यूनिट पहले आता है उसके बाद मॉड्यूल्स ऐड किए जाते हैं। बॉटम अप में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो जो पूरी सिस्टम है उसको एज अ सिस्टम टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग एक एक मॉड्यूल निकालते जाते हैं उसमें से। तो जैसे बॉटम से अप पे जाएगा, तो जैसे मान लो बॉटम में हम लोग पूरी एप्लीकेशन टेस्ट की, फिर वहाँ हमने क्या किया, उसके एक लेवल अप पे हमने 2 मॉड्यूल हटा दिए और 4 मॉड्यूल टेस्ट किए, फिर और 2 मॉड्यूल हटा दिए, 2 मॉड्यूल टेस्ट किए। तो ऐसे बॉटम अप जाता है और टॉप डाउन जाता है, कि हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। हाइब्रिड टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग कॉम्बिनेशन में मेनली होता है कि हम लोग कहीं से भी इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई 2 मॉड्यूल ले लिए, उस पे से हम लोग ने बिजनेस रिक्वायरमेंट टेस्ट की, और उसको हम लोग अगल अलग डायरेक्ट, जैसे हम लोग बॉटम के बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग बॉटम डाउन भी जा सकते हैं, बॉटम अप भी जा सकते हैं, टॉप डाउन भी जा सकते हैं। तो दिस इज द हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके। फिर अपना क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, राइट। तो सिंपल है गाइस, ये क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो टाइप्स दो है मेन, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, राइट। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेस्टिंग द फंक्शनलिटी, द फीचर ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉन फंक्शनल एक्सपेक्ट है, परफॉर्मेंस है, यूजिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, हम वो सब चीज़ें चेक करते हैं। नॉन ये फंक्शनल टेस्टिंग ऑलवेज विल डू बिफोर अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, राइट। एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम लोग कब चेक करते हैं, जब हमारी फंक्शनलिटी सब अच्छे से चल रही हो, उसके बाद ही हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स है यूनिट टेस्टिंग, स्मॉक टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोकलाइजेशन हो गया। तो ये सारी टेस्टिंग जो टाइप है वो फंक्शनल टेस्टिंग है, राइट। इसके बारे में भी ये सारी जो टेस्टिंग है
उसके बारे में भी मैंने एक मास्टर वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ था, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वीडियो आपको दिखेगा। 1 मिनट। आई थिंक दैट वीडियो आई क्रिएटेड वेरी लॉन्ग अगो, लेकिन उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग वी हैव, राइट? तो ये आप, ये आई थिंक ये रहा, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे वो वीडियो आपको दिख जाएगा, तो आप यहाँ से उसको मेक श्योर कर सकते हो, आप इसको रेफ़र करो। 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने सारे टेस्टिंग के जो टाइप्स है, उसको मैंने बताया हुआ है। ये सारे टेस्टिंग के टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यू जस्ट गो एंड रेफ़र दैट वीडियो, दैट विल मेक मोर सेंस टू यू, ओके? But if somebody asks you what is functional and non-functional testing, or what are the different type of testing, you should answer like this way at a facial level. That will really help you out. उसके बाद आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वी हैव इन टेस्टिंग, राइट? तो मान लो कि भी हमारे पास होता है टेस्ट सिनेरियो का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें लिस्ट ऑफ टेस्ट सिनेरियो होता है, वन लाइन ऑफ टेस्ट सिनेरियो होते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ओके? फिर आता है हमारा टेस्ट केस, जहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स रखते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड इनपुट क्या होना चाहिए, तो वो सब हमारे टेस्ट केस में हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर हमारा आता है टेस्ट प्लान, जो टेस्ट प्लान मेनली मैनेजर और टेस्ट लीड क्रिएट करते हैं। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग वी नीड टू कैरिड आउट इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स वी हैव, रिसोर्स के एक्सपर्टीज़ क्या है, टाइमलाइन क्या है प्रोजेक्ट की। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है टेस्ट प्लान में। फिर आता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये मेनली यूज़ होता है टू मेक श्योर द कवरेज ऑफ द रिक्वायरमेंट, राइट? सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस को हम लोग यूनिट यूज़र स्टोरी से हम लोग लिंक करते हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि सारी यूज़र स्टोरी अच्छे से टेस्ट हो गई है कि नहीं। इसके इस पे भी हम मेरा सेपरेट डिटेल में वीडियो है, उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट भी दिखाया हुआ है कि व्हाट इज़ आरटीएम, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल कि हम लोग इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन। फिर अपना आता है टेस्ट डेटा, राइट? द लिस्ट ऑफ टेस्ट डेटा वी गोना यूज इन आवर टेस्टिंग। फिर हो गया बग रिपोर्ट, दैट वी ऑल नो, राइट? वी नीड टू मेंटेन द बग रिपोर्ट टू, वी कैन ऑल्सो कॉल इट डिफेक्ट रिपोर्ट। सो डिफेक्ट ट्रायल्स में भी ये रिपोर्ट काम आता है, और जब हम लोग को बग ट्रैक करना होता है तब भी ये रिपोर्ट काम आता है। Then we will have a test summary report each and every iterations after we perform the testing, right? We need to submit the test summary report to the management कि भाई in this particular sprint we, or in this particular version we have tested this much of test cases, how much is executed, passed, failed और skipped। so इसका काउंट हमको उनको देना पड़ता है कि यार ये वर्जन में हम लोग ने मान लो कि 200 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं, उसमें से 150 यानी 150 पास हो गए हैं, बाकी के फेल हुए हैं, कितने स्किप हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट में। तो ये अपना हो गया डॉक्यूमेंट्स, राइट? अगर कोई आपको पूछता है कि भी डू यू अवेयर अबाउट द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वी हैव इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यू जस्ट स्पीक अबाउट दिस थिंग्स, ओके? टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। Okay, so the next question is that what is bug, defect, error, fault, and failure, right? So mostly they will ask you the difference between bug and defect, right? So let me tell you what is bug. So when QA doing a testing, right? जैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कभी कस्टमर इज रेजिंग सम टिकट, सपोर्ट टिकट, और वहाँ से सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट आपको भेजते हैं कि भी ये जेन्युइनली कुछ बग लग रहा है, राइट? तो एट दैट टाइम वी नॉर्मली रेज अ बग, हम लोग उसको लॉग कर देते हैं, राइट? सो इट इज वी नॉर्मली कॉल इनफॉर्मल डिटेल, वी पुट द इंफॉर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग्स एंड वी लॉग अ बग। तो वो नॉर्मली कैसा होता है कि भाई the bug is that, like, the software is not working as per the customer requirement or as per the customer expectation, right? तो उसको लोग ने बग एज अ बग रेज किया। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बग बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग क्रिएट करते हैं कि भाई यार ये नहीं चल रहा है, लेकिन इसको ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे चल रहा है, समथिंग लाइक दैट वे। तो बग, इसको हम लोग बोलते हैं कि इनफॉर्मल नेम ऑफ डिफेक्ट, राइट? तो हम लोग उसको इनिशियली रेज करते हैं एज अ क्यूए ऑफ इफ इट इज कमिंग फ्रॉम कस्टमर। डिफेक्ट क्या होता है कि डिफेक्ट इज समथिंग जेन्युइन बग, राइट? जेन्युइन बग मीन्स जब डेवलपर बोलता है नहीं यार दिस इज द जेन्युइन बग, राइट? तो ये इसको हम लोग, तब वो बग ही कन्वर्ट हो जाता है डिफेक्ट में।
इसके लिए कुछ कोई दूसरा टाइप या दूसरा बग हमको रेज नहीं करना होता है। दिस इज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसलिए बग लाइफ साइकिल और डिफेक्ट लाइफ साइकिल दोनों एक ही होता है। तो डिफेक्ट क्या होता है, जब डेवलपर उसको एक्सेप्ट करता है, ओके दिस इज अ बग, देन इट विल बिकम अ डिफेक्ट, राइट। एंड डिफेक्ट इज नथिंग जस्ट डेविएशन और चेंज बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये चीज क्लियर हो गई। बग क्या है, जो इनिशियली हम लोग रेस करते हैं उसको हम लोग बग बोलते हैं, इनफॉर्मल नेम ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट मीन्स जब बग डेवलपर एक्सेप्ट करता है कि दिस इज अ जेन्युइन बग, राइट, तो वो हो जाती है डिफेक्ट। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आता है एरर। व्हाट इज एरर? तो जो भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, राइट, इन अ कोड, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। उससे उसमें हम लोग ये चीज़ भी डाल सकते हैं कि कभी कभी डेवलपर से खुद से गलती से मिस्टेक हो जाती है, दे डू नॉट पुट द, दे मिसअंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट, राइट, और उन लोग ने लॉजिक कहीं अलग से प्लेस कर दिया है, उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे एरर आ रही है, तो वो हो जाता है एरर। अभी फॉल्ट क्या हो गया, कि फॉल्ट ये हो गया कि भाई ये जब एप्लीकेशन जब आपने बनाया, राइट, उसमें अगर कोई भी एरर आ रही है, एक्सेप्शंस आ रहा है, राइट, तो उसको हाउ टू हैंडल, उसके लिए डेवलपर ने प्रॉपरली लॉजिक नहीं लगाया होता है। उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन में आपको, जब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तब आपको ये चीजें दिखेगी एज अ पार्ट ऑफ सम कोड, आपको कहीं पे भी दिख जाएगा। जब एरर आएगी तो लिटिल बिट ऑफ कोड दिख जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, राइट। So fault may occurs in a software because it is not added in a code for a fault tolerances। एक्सेप्शनल हैंडलिंग वी कैन जस्ट से, एक्सेप्शन जो आता है उसको हम लोग कैसे हैंडल करवाते हैं। लास्ट में वर्ड आता है फेलियर। फेलियर कब होता है, कि जैसे मान लो कि यार बहुत सारी डिफेक्ट आ गई, राइट, तो उसका एंड ऑफ द डे हम लोग बोलते हैं कि यार फेल हो गया, राइट, ये आपका अपडेट या आपका सॉफ्टवेयर फेल हो गया। तो जब फेलियर आता है तो दैट विल बी द बिग इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एच डी एल सी टीम, राइट। कि जैसे मान लो कि यार पेमेंट गेटवे की वेबसाइट है, वहाँ पे पेमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इश्यू कर रही है। वहाँ पे जब वो पेमेंट पे क्लिक कर रहा है तो क्लिक नहीं हो रहा है, फिर क्लिक हो रहा है तो कभी कभी उसको एरर आ रही है। तो मल्टीपल डिफेक्ट्स कम टुगेदर एंड दैट विल क्रिएट अ फेलियर, राइट, ऑफ द एप्लीकेशन ओवरऑल। तो ये है कुछ वर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं एट इनिशियल लेवल: बग, डिफेक्ट, एरर, फॉल्ट एंड फेलियर। ओके। मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आप लोग ने, आपको मैं बग का एक एग्जांपल दूँ कि जैसे मेरे को जाना था, मैं यहाँ से अहमदाबाद से निकल के मुझे जाना था सूरत, राइट, और सूरत के रास्ता मैं भूल गया और मैं कहीं और मुड़ गया, राइट। तो जैसे मान लो मैंने रास्ता ले लिया बड़ौदा की ओर, राइट। तो अगर मैं बड़ौदा की ओर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं बड़ौदा नहीं पहुँचूंगा तब तक वो हो गया मेरा बग, राइट। जैसे ही मैं बड़ौदा पहुँच गया, मेरे को पता चला कि ये मेरे से गलती हो गई, उसको बोलते हैं डिफेक्ट, राइट। तो ये एक और एग्जांपल है। तो इस हिसाब से आप लोग खुद के भी एग्जांपल, आपने जो आपकी ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हो उसके हिसाब से कपल ऑफ बग आप आपके दिमाग में रखो, बिकॉज दे विल डेफिनेटली आस्क कि भाई व्हाट इज अ रिसेंट बग यू हैव रेज इन योर एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज आपको बहुत वहां पे काम आएगी। द लास्ट थिंग्स दैट वी हैव इट्स कॉल्ड डिफेक्ट लाइफ साइकिल, हम इसको बग लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेनली जब हम लोग, हमको एक कोई बग मिलता है, राइट, व्हेन वी आर डूइंग अ टेस्टिंग, हमको मान लो कि ये बग मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे। तो हमने जीरा ओपन किया हो या जो भी बग ट्रैकिंग टूल है हमारी कंपनी यूज कर रही है, हमने वहां पे जाके उसको लॉक कर दिया। तो इनिशियली जब हम लोग लॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यू बग है, राइट। तो ये न्यू लिस्ट ऑफ बग है जहाँ से डिफेक्ट समरी या डिफेक्ट लॉग या जो बग ट्रायज जो होता है उसके रिपोर्ट्स बनता है कि भाई ये सारे न्यू बग्स है, राइट। उसके बाद क्या करता है, डेवलपर लीड आता है, वो चेक करता है बग्स को, वो असाइन करता है डेवलपर को। तो जैसे ही वो डेवलपर को असाइन करता है, वो उसको असाइन हो गया। अब असाइन जैसे ही हुआ, जैसे मान लो कि डेवलपर सुरेश को असाइन हो गया ये बग, राइट। अभी सुरेश के पास ये बग पड़ा है, इट इज इन ओपन कंडीशन। तो जैसे मैं एज ए क्यूए अंकित ने रेस किया था, मैं चेक कर रहा हूँ कि सुरेश के पास ये बग पड़ा हुआ है। तो सूरज जैसे इस पे काम करना चालू करेगा, उसको इन प्रोग्रेस करके वो क्या करेगा, उसको फिक्स कर देगा। और जैसे ही बग फिक्स हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मेरा काम है रीटेस्ट करना बग को। तो मैं उसको रीटेस्ट करना चालू करूँगा। अभी रीटेस्ट में दो चीज़ हो सकती है कि अभी मैंने बग रीटेस्ट किया, तो अभी भी मुझे एरर दिख रही है या अभी भी इश्यू आ रहा है, तो उसको मैं रीओपन करूँगा, तो वो वापस ओपन में चला जाएगा। अगर रीटेस्ट में मुझे लग रहा है कि सब सही से चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं उसको वेरीफाइड कर दूंगा। और वेरीफाइड के बाद वो जाएगा स्टेजिंग क्यूए इन्वायरमेंट में, और जैसे ही वो प्रोडक्शन पे जाएगा,
मैं उसको एक बार और प्रोडक्शन में क्विकली वेरीफाई करके उसको क्लोज कर दूंगा। तो ये नॉर्मली रहता है बग लाइफ साइकिल। अभी एक डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस उसमें रहता है। कभी कभी कुछ स्टेप्स आप देखोगे कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो इट्स डिपेंड ऑन अ प्रोजेक्ट। बट ये जनरलाइज उसके जो स्टेज होते हैं ये इस तरह से होते हैं। अभी मान लो कि भाई बग ओपन स्टेटस में है, राइट? और मान लो कि भाई डेवलपर ने उसको एनालाइज करना चालू किया, तो उसने उसने देखा कि ये तो डुप्लीकेट बग है। ऐसा बग तो ऑलरेडी पहले रेस हो चुका था और इसको हमने फिक्स भी किया था। तो उसको वो मार कर डुप्लीकेट भी कर सकता है। अगर वो जेन्युइन बग नहीं है, राइट, अगर वो फंक्शनलिटी है और वो क्यूए और को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज़ के बारे में, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। डिफर्ड का मीनिंग होता है कि ये बग है, जेन्युइन बग है, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्प्रिंट जाने वाला है उसमें ये बग को रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या ये फंक्शनैलिटी क्लाइंट ने डुप्लीकेट कर दी है। क्लाइंट ने बोला कि अभी हमको ये इस चीज़ में फंक्शनैलिटी में ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई बग आता है तो उसको हम लोग डिफर्ड कर देते हैं, मीन्स डेड, कि वो रिकॉर्ड में रहेगा लेकिन उसका कोई ना स्प्रिंट प्लानिंग में या ना डिफेक्ट ट्रायल में उसका जिक्र होगा, कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डिफर्ड, राइट? तो इस हिसाब से डिफरेंट बग्स के स्टेटस होते हैं, और इस हिसाब से फ्रॉम बॉर्न टू डेड बग का एक लाइफ साइकिल बनता है, फ्रॉम न्यू टू क्लोज। तो ऑलवेज मेक श्योर आप जब एक्सप्लेन करो ये आंसर, आप इस हिसाब से जाओ, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रखो कि बग लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। न्यू, असाइन, ओपन, इन प्रोग्रेस, फिक्स्ड, रीटेस्ट, वेरीफाइड एंड क्लोज। रीटेस्ट वाला कंसेप्ट उसको ज़्यादा क्लियर करना, बिकॉज वो चीज़ से उसको पता चलेगा कि यू हैव अ जेन्युइन नॉलेज और नॉट, राइट? तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर द पीपल हु आर जेन्युइनली स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, जिनको सीखना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। आई नो कि देर आर मैनी अदर वीडियोज वी हैव, राइट, इन अ यूट्यूब, बट अगर आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ क्वेश्चन से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं की है, यू कैन जस्ट टेल मी। आई विल ट्राई टू गाइड यू विद दोज क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू, टेक केयर।